Okay, so this is the first chapter of class 10 biology. Class 10 biology, right? And the name of the first chapter is life processes. This is the CBSE ka whatever it is. So I have given us some set of questions in your class, and I will discuss this set of questions which will make this video. For those who are watching the video directly and is not in my tuition, for them also I will explain the questions one after the other, and I hope that with that we will begin this chapter in a much more better way. So, first question that was there here is, what is nutrition? We know that the four basic life processes are what? Nutrition, then respiration, then excretion, and then reproduction. Now these are the four basic life processes. These are done by everyone. These are done by each and every organism. What happened? Okay, these are done by each and every organism. Now, I am making video, that doesn't mean that you people will not ask me doubts. You ask me doubts, okay? So, anyway, so why do you call them basic life processes? Why do you like to? Because this is done by all the organisms, starting from a unicellular organism to a multicellular organism. Everybody does it. Everybody does it. And before explaining what is nutrition, I would like to talk to you that you should know, and you should have learned this in class 9, that cell together makes up tissue, together makes up organ, together makes up organ system, and together makes up the organism. Now, for an organism to survive, it must do these four life processes, which doesn't mean, I am not saying that there are not higher life processes or different types of other life processes than this in higher organisms. There are of course control and coordination. There is of course locomotion and movement. Locomotion means moving from one place to another. There is of course transportation, like she was saying, transportation. But these are required by higher organisms. Are you getting my point? And these life processes are required because these life processes are occurring. Are you getting my point? Am I being able to make you understand that because these life processes are occurring, that's why these life processes had come into existence through the course of evolution into the human beings. Am I being able to make myself clear? So, a particular cell does these life processes. Now, cell मिलके टिश्यू मिलके organ मिलके organ system और organism, एक organism को न्यूट्रिशन करना बहुत जरूरी है. लेकिन सर, एक ऑर्गेनिज्म में अगर न्यूट्रिशन होना है, तो इसका मतलब उसके ऑर्गन सिस्टम्स को भी न्यूट्रिशन मिलना चाहिए, उसके ऑर्गन्स को भी न्यूट्रिशन मिलना चाहिए, उसके टिश्यूज को भी न्यूट्रिशन मिलना चाहिए, और उसके ईच एंड एवरी सेल्स को भी न्यूट्रिशन मिलना चाहिए. ये एग्री करते हो तुम लोग मेरे से ये बात? और इतना ही नहीं, हम लोग देखते हैं नेचर में यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स रहते हैं. नेचर में यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं, राइट और रॉन्ग? तो नेचर में अगर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होता है, इफ देयर इज unicellular organism in the nature. Hey, 1 second. You 4 people, you are doing maths. You are not supposed to discuss among each other. You do by yourself. If you have doubt, you will call me. So, unicellular organisms are the organisms which does nutrition, respiration, excretion, reproduction, all in its one cell. कैसे? The cell is there.
Suppose the nutrition particles or the nutrients are outside the cell, the nutrients go in by diffusion or maybe by active transport or whatever, I don't care. It goes in. Okay. And you know the cell membrane is semi-permeable and the nutrition goes in. For unicellular microorganisms or unicellular organisms. If you know, if your knowledge is clear, you are in class 10, assuming your knowledge is clear, if you know that nutrition, unicellular organisms can be prokaryotic, can be eukaryotic. Eukaryotic unicellular organisms के examples are amoeba, right or wrong? Paramecium. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Prokaryotic are all bacteria. So all this, no, fungi is multicellular organism. Who said fungi? One fungi is there which is yeast, which is a unicellular fungi. Okay, unicellular fungi. That is different. That is not the topic of study here. Anyway, so what I was trying to say is that you see that nutrition is what? Nutrition is taking in of nutrients. Taking in of nutrients. Now in class 10 biology of CBSE, in case of animals, you learn about digestion when you learn about nutrition, and also you learn about photosynthesis when you learn about nutrition. But these are not the direct topics that you should at first hop into. Okay, of course, photosynthesis is autotrophic, so you should understand the meaning of autotrophic at first. Digestion is heterotrophic mode. In a heterotrophic organism, there is this mode of digestion or something we can say. Anyway, but that doesn't mean we should understand the first meaning of autotrophic and heterotrophic, and then we should go hop into nutrition. Now, what is the meaning of autotrophic and how we will know that an organism is autotrophic or what autotrophic means? This is the first thing that one should put inside their brain. But before I explain you what autotrophic is, I would like to say you that our life is carbon based. Now sir, why do you like to say that our life is carbon based? Because cells, our cells, bacterial cells, protozoal cells, amoebal cells or paramecium ka cells or fungi ka cells or bryophyte ka cell or pteridophyte ka cell or big plants ka cell or small plants ka cell, big lion ka cell or human ka cell or snake ka cell or leopard ka cell, किसी का भी cell, चाहे वो किसी भी टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो या फिर मल्टीसेलुलर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म हो, I don't care. But why care? That cell is made up of carbohydrates, proteins, lipids, DNA and RNA. If you want to know what is their function in the cell, you should go in class 9 part 1 video recently posted in my channel. And there in details I have said that carbohydrate makes up the cell wall in case of bacteria, fungi and plants, because they are the only one who have cell wall. Lipids and proteins together make up the cell membrane of all organisms. DNA and RNA are the carriers of the molecules which carries the genetic sequences or genes. You know the importance of genes. We will also understand the importance of genes in detail. If you want to know the importance of genes in little bit short and you want to just understand the concept, you should go in class 9 part 2 video which will be recently posted, which is recently posted before this video. So whatever it is, these are made up of all carbon. Sir, only carbon? No. Carbon forms the backbone. Because carbon is a property, carbon can link with carbon atoms and can make long chains which are straight, or maybe they can make branched chains.
or maybe they can make cyclic chains, and because of this reason and because of another reason that carbon has 4 bonds or can create 4 covalent bonds around it. You are in class 10, you are my students, you already know what chemical bonding is, what covalent bonding is. I have taught, right or no? So for that also you need to watch the videos. Okay, what are the name of the videos? Can you tell, so that I can refer the videos to the students of YouTube? The name of the videos are, I think in one playlist is there, CBSE 10 CBSE class 10 chemistry basics. नहीं, one is there CBSE class 10 chem basics, उसका जो 11th वीडियो है वो, एंड कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स बोल के एक प्लेलिस्ट है, उसका जो फर्स्ट वीडियो है वो देखने से हम लोगों को बॉन्डिंग के बारे में पता चल जाता है और कार्बन के इस नेचर के बारे में भी पता चल जाता है कि कार्बन ऐसा करता है। और ये करने के लिए, ये 4 बॉन्ड्स होने के लिए और ऐसे साइक्लिक स्ट्रक्चर्स फॉर्म करने के लिए वो ऐसे माइक्रोमोलिक्यूल्स बनाने में सक्षम है। क्या वो अकेला बना लेता है? नहीं, वो ऐसा बैकबोन फॉर्म करता है, उसके ऊपर और एलिमेंट्स जैसे कि सोच ले ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन मेनली, मतलब COPSNH, ये लाइफ को बनाते हैं। मैं बोलने में पसंद करता हूं ये चीज। आई लाइक टू से दैट दिस कार्बन फॉर्म्स द बैकबोन, और ये सारे उस कार्बन के साथ लगे हुए होते हैं और अलग अलग फॉर्म्स में, अलग अलग शेप्स में, अलग अलग स्ट्रक्चर्स में, अलग अलग वेज में ये 4 मॉलिक्यूल्स बनाते रहते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जिनके अलग अलग इंपॉर्टेंसेस हैं। जैसे कि मैंने बोला कार्बोहाइड्रेट तुम्हारा सेल वॉल बनाता है, या कार्बोहाइड्रेट सिर्फ तुम्हारा सेल वॉल नहीं बनाता है, कार्बोहाइड्रेट तुम्हारा प्राइमरी सोर्स ऑफ रेस्पिरेशन भी है। जैसे कि जब तुम ब्रेक डाउन करते हो ना एनर्जी को, जो फूड तुम खाते हो, तुम न्यूट्रिशन जब करते हो, न्यूट्रिशन में आऊंगा तब मैं बोलूंगा, जब तुम न्यूट्रिशन करते हो तो न्यूट्रिशन जब करने जाते हो तो न्यूट्रिशन जिस चीज का भी करो, जिसका भी भक्षण कर लो, ठीक है, मैं प्रूव कर सकता हूं तुम यही खा रहे हो। अगर तुम कोका कोला को छोड़ के, पेप्सी को छोड़ के और बात करोगे, सिंथेटिक ड्रिंक्स को छोड़ के बात करोगे, ठीक है, तुम यही सारे खा रहे हो। हाँ, पियक्कर जो है वो दूसरा चीज खा रहा है, वो अलग कंपाउंड है, उस पर बाद में नहीं, वो उसको न्यूट्रिशन भी नहीं कहा जा सकता है, वो तो अच्छा एनीवे वो अलग चीज है। तो दूसरे किसी के फोन में ट्रांसफर कर देना। एनीवे जो मैं बोल रहा हूं, हाँ कर दो। तो जो मैं बोल रहा था कि लाइफ में ये सब लिखना भी नहीं चाहिए, नहीं लिखना पड़ेगा। अगर साइंस लोगे तो इसका पूरा एक चैप्टर है केमिस्ट्री में, हाँ पूरा एक चैप्टर है। वो वाला चैप्टर नहीं कि पी के कैसे मजा आ रहा है, वैसे नहीं, मतलब केमिस्ट्री फीलिंग्स वाला चैप्टर नहीं, फीलिंग्स वाला चैप्टर इंग्लिश में पढ़ो, ठीक है। हाँ वो तो अच्छा एनीवे मैं प्रूव कर सकता हूं तुम ये खा सकते हो। क्या इधर उधर की बातें करूं, मैं प्रूव कर सकता हूं तुम ये खाते हो। तुम कोई भी फूड का नाम बताओ, आइदर वो प्लांट बेस्ड है या एनिमल बेस्ड है, सोच लो। हाँ क्या मांस नहीं खाते? चिकन खाते हो ना? फ्रूट्स हाँ चिकन खाते हो कि नहीं खाते हो? हाँ तो एनिमल बेस्ड फूड खाते हो, अंडा खाते हो कि नहीं खाते हो, मिल्क खाते हो कि नहीं खाते हो, एनिमल बेस्ड या प्लांट बेस्ड फूड खाते हो। तो एनिमल और प्लांट्स भी तो ऑर्गेनिजम्स ही है, सेल्स से ही तो बने हुए हैं, तो यही तो खा रहे हो। सर मैं फल खाता हूं, फल में, अरे फल में कार्बोहाइड्रेट तो होता है, मुझे पता है, ठीक है, फल में अलग अलग तरीके के, फल में अलग अलग तरीके का कार्बोहाइड्रेट होता है, लेकिन होता तो है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इज दिस अंडरस्टूड और नॉट अंडरस्टूड? तो तुम खा यही रहे हो, और देखो हैरानी की बात, तुम्हारा सेल इससे भी बना है, जाहिर सी बात है ना, तो यही होना चाहिए। हाँ तो क्या बोल रहा था मैं, भूल गया पूरा इनके वजह से। प्लांट बेस्ड एनिमल बेस्ड फूड खा रहे हो, तो हैरानी की बात ये है, देखो मैं ये बोलने में पसंद करता हूं, तुम्हारा सेल जिस चीज से बना हुआ है, तुम खा भी उस चीज ही को रहे हो, राइट और रॉन्ग?
क्योंकि तुम्हारा सेल सिर्फ इस चीज से बना हुआ नहीं है, एंटायर बायोस्फीयर में जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं सबके सेल्स इसी चीज से बने हुए हैं वे, और इनके अलग अलग इंपॉर्टेंसेस हैं। कार्बोहाइड्रेट का जैसे इंपॉर्टेंस बताने का कोशिश मैं कर रहा था कि ग्लूकोज जो है वो रेस्पिरेशन करने के लिए ग्लूकोज एक कार्बोहाइड्रेट है, ग्लूकोज का ही जरूरत होता है। इज दिस क्लियर टू यू? आया बात समझ में? नहीं आया बात समझ में? आया? तो देख, अब ये पूरा जो मैंने बताया पूरा समझ में आया ना? तो न्यूट्रिशन करने का जो एम है, न्यूट्रिशन मतलब टेकिंग इन न्यूट्रिएंट्स। हमारा न्यूट्रिएंट्स क्या है? हमारा न्यूट्रिएंट्स यही चीजें है, इनके साथ डीएनए आरएनए कभी बताया नहीं जाता है, क्योंकि देख एक चीज बता देता हूं, कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना हुआ होता है। प्रोटीन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन और सल्फर से बना हुआ होता है। यानी नाइट्रोजन और सल्फर सोर्स तेरे को चाहिए होगा, नाइट्रोजिनस फूड बोलते ना, प्रोटीन खाओ तो नाइट्रोजन मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि उसका प्रोटीन खा के तू अपना प्रोटीन बनाएगा। ठीक है, यहां पे एक चीज बताना मैं मुनासिब समझता हूं ताकि तुम लोग के दिमाग में एक चीज घुस जाए। देख, अगर मैं कार्बोहाइड्रेट का बात करूं, ये समझ ले, ठीक है? कार्बोहाइड्रेट के बारे में पॉलीसेकेराइड होता है और कार्बोहाइड्रेट मोनोसेकेराइड भी होता है। बेटा की बोल रहा? कार्बोहाइड्रेट पॉलीसेकेराइड भी होता है, कार्बोहाइड्रेट मोनोसेकेराइड भी होता है। मोनोसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट कौन होता है? जो सिंगल यूनिट हो, कार्बन 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 ऐसे लिंक होके सिंगल यूनिट हो, और ये सिंगल यूनिट इसको मोनोसेकेराइड कहेंगे। और ऐसे सिंगल यूनिट्स बहुत बार अगर जुड़ जाए और मल्टीपल ब्रांच चेन में भी जुड़ सकता है, ऐसे ब्रांच चेन में भी जुड़ सकता है, मल्टीपल चेन्स में भी जुड़ सकता है ऐसे, तो उसको हम लोग पॉलीसेकेराइड कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट डजंट ओनली मेक्स द सेल, कार्बोहाइड्रेट doesn't only makes the cell wall, it is also acts as storage food। दो चीजें, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड्स। लिपिड्स भी स्टोर होता है एज अ फूड, स्टोरेज न्यूट्रिएंट। और जब स्टोर करते हो कार्बोहाइड्रेट को एज पॉलीसेकेराइड स्टोर करते हो। पता है प्लांट कैसे स्टोर करता है? प्लांट स्टोर करता है एज स्टार्च। पता है ह्यूमंस कैसे स्टोर करते हैं? ह्यूमंस स्टोर करते हैं एज ग्लाइकोजेन, एज पॉलीसेकेराइड। क्या हुआ? ग्लाइकोजेन, ग्लाइकोजेन ये क्या है? ग्लूकोज बोल के एक मॉलिक्यूल होता है। ग्लूकोज के बहुत सारे यूनिट्स अगर जुड़ जाए, एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ ब्रांच स्ट्रक्चर बना दे, ठीक है, तो वो बन जाता है स्टार्च। वही ग्लूकोज अगर इन डिफरेंट वे जुड़ जाए, ठीक है, थोड़ा सा स्ट्रक्चरल डिफरेंस होता है लेकिन पॉलीसेकेराइड बनाएगा, वो बन जाता है ग्लाइकोजेन और स्टोर करके रखता है। पता है हमारे बॉडी में ग्लाइकोजेन कहां स्टोर होता है? लिवर सेल्स में। इज दिस क्लियर टू यू? तो लिवर सेल्स में ग्लाइकोजेन स्टोर हो रहा है, प्लांट स्टार्च एज अ स्टार्च स्टोर कर रहा है। तो कार्बोहाइड्रेट का ये इंपॉर्टेंस है। लिपिड्स भी का भी वही इंपॉर्टेंट है। लिपिड का सेल में क्या इंपॉर्टेंस है? तुम बोलोगे कि सर लिपिड्स का सेल में इंपॉर्टेंट है कि लिपिड्स हमारा सेल मेम्ब्रेन बनाता है? नहीं, लिपिड्स स्टोरेज, फूड स्टोरेज में भी काम आता है। लिपिड स्टोर होता है हमारे बॉडी में। ज्यादा लिपिड स्टोर करोगे, या लिपिड्स या फैट्स बोल सकते हो, ज्यादा लिपिड्स या फैट स्टोर करोगे तो ऐसा बनेगा, ठीक है, मोटे बनोगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सर लेकिन ये भी एनर्जी देता है और ये भी एनर्जी देता है। हाँ, दोनों एनर्जी देता है। ये ज्यादा आसानी से देता है, ये थोड़ा टफ होता है इसको ब्रेक करना। इसीलिए तो जो मोटा है उसको फैट ब्रेक करने के लिए टफ हो जाता है। बोला जाता है ना कि मोटापा अगर घटाना है, कार्बोहाइड्रेट इंटेक कम कीजिए। क्यों? क्योंकि अगर वो कार्बोहाइड्रेट इंटेक कम करेगा तो उसका बॉडी एनर्जी के लिए ऑटोमेटिकली सिलेक्ट करेगा फैट को, जो उसके बॉडी में स्टोर्ड है, जिसकी वजह से वो मोटा है। वो बर्नआउट हो जाएगा, वो यूटिलाइज हो जाएगा काम करने से। समझ में आ रहा है? मजा आ रहा है सुन के? कार्बोहाइड्रेट अगर खाता गया, बोलते ना कार्बोहाइड्रेट चीनी ज्यादा खाने से ज्यादा मोटा हो गए, तो चीनी तो तुमको मोटा नहीं बनाता। चीनी तो ज्यादा मोटा नहीं होगा, राइट और रॉन्ग?
चीनी तो मोटा बनाने के लिए, चीनी मोटा बनाते क्यों है? क्योंकि तुम चीनी खाए जा रहे हो, तो तुम्हारे लीवर सेल्स में जो है, ठीक है, वो ग्लाइकोजन का जो स्टोरेज का जो कैपेसिटी है वो खत्म हो जाएगा एक टाइम में। फिर जो एक्स्ट्रा चीनी तुम खाए जा रहे हो ना, वो फैट में बदल के स्टोर होगा, लेकिन स्टोर होगा। एक कैपेसिटी होता है ना लिवर सेल का, तुम खाए जा रहे हो, काम नहीं कर रहे हो तो मोटा बन रहे हो, ऐसे मोटा बनते हो। और जब दुबला होना होता है तो जस्ट उसका उल्टा प्रोसीजर करना होता है। चीनी खाना बंद कर दो तो तुम्हारा शरीर क्या करेगा? फैट्स को यूटिलाइज करना शुरू कर देगा और तुम दुबले बनते जाओगे। इज दिस क्लियर टू यू? सर अगर बॉडी में फैट्स भी नहीं रहा और शुगर भी नहीं रहा तो बॉडी क्या करेगा? प्रोटीन को यूटिलाइज कर देगा। थोड़ा टफ होगा प्रोटीन को यूटिलाइज करने में, किडनी में प्रेशर आएगा, लेकिन कर लेगा। इज दिस क्लियर टू यू? वो दूसरी बात है। तो यहां से थोड़ा सा न्यूट्रिशन का एम भी मुझे पता चलता है। अच्छा, कार्बोहाइड्रेट का काम पता चला, सेल के अंदर कार्बोहाइड्रेट के बारे में क्लियर हो गया। कार्बोहाइड्रेट पॉलीसेकेराइड का नाम, दो नाम, और उसी मोनोसेकेराइड मिलकर पॉलीसेकेराइड बनाता है, ये क्लियर हो गया। इसी पॉलीसेकेराइड को जब यूटिलाइज, देख जब पॉलीसेकेराइड को यूटिलाइज करना होगा तब पॉलीसेकेराइड फॉर्म में नहीं रखना है, उसको यूटिलाइज करने के लिए उसको बदल के मोनोसेकेराइड बना देता है, ग्लूकोज बना देता है। उसी ग्लूकोज को सेल में ट्रांसपोर्टेशन करके ब्लड से फैलाया जाता है ब्लड में, और हर एक ब्लड क्या करता है? उसको मसल सेल्स में ले जाता है और ग्लूकोज को ब्रेक डाउन किया जाता है, और ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करके ग्लूकोज को, अरे यार दूसरा कलर का पेन यूज किया कर, कभी कभी खुद ही को टाइट किया। ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करके एटीपी तैयार किया जाता है। इसको कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। ब्रीदिंग इन एंड ब्रीदिंग आउट इज जस्ट अ पार्ट ऑफ योर रेस्पिरेटरी सिस्टम। इट्स नॉट सेलुलर रेस्पिरेशन, मेनली केमिकली। मैं बोलता हूं ना, लाइफ इज अ सेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस। केमिकली ग्लूकोज को एटीपी में बदला जाता है सेल के अंदर, उसको कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। क्या लुटी हुई रियासत की उजड़े हुए सुल्तान की तरह क्यों बैठा हुआ है अरुणी? अच्छा, आजा, मैं भूल ही गया था तू आया था। आजा 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 आजा, नहीं आजा आजा आजा, ऐसी लगाया है, आओ। मैं भूल गया था तू आया, इधर आ, इधर आ, इधर इधर आजा, उसीलिए तो बुला रहा हूँ। अरे आजा, कोई बात नहीं, मेरा वीडियो कोई देखता भी नहीं है, कि लुल्ला यूट्यूबर हूँ मैं। तुम आ जाओ, तुम देखना अपने आप को, आ जाओ। अरे प्रमोशन में काम आ जाएगा बेटा। यूट्यूब में डालना तो देवायुध मिलने आया था मेरे से, मैं पढ़ाने के ताल में भूल ही गया। कभी कभी ऐसे पुराने स्टूडेंट्स आ जाते हैं तो अच्छा लगता है। थैंक यू। ओके, फिश बॉल। तो आज बिजी हो बेटा? तुम सुबह आया करो, मिलना है मेरे से। अच्छा, स्कूल को गर्मी की छुट्टी भी तो आएगी ना? थोड़े मेरे केमिस्ट्री और बायोलॉजी ट्यूशन इन शिव मंदिर और सिलीगुड़ी में कहे हैं तो बायोलॉजी ट्यूशन, ठीक है? थोड़ा प्रोपागेट करो, ठीक है? अभी भी उतना ही प्यार करते हो ना? एकदम। अरे बेशी धीरे-धीरे पर भारी। चलो, क्या फोन लिया हो? मोटो S20। वेरी गुड, ठीक है। थैंक यू देवायत फॉर कमिंग। आई एम सॉरी, आई फॉरगॉट दैट यू वर वेटिंग आउटसाइड। सर जापानीज है क्या? तुम लोग का सीनियर है, डीपीएस का ही, थोड़ा अच्छे से मत कर दो। बोलता है सारा पे होता है। अच्छा, वो बोल दिया, मैं बोल दिया, चलो। अरे मन पे मत लो बातें सारी। अब सुनना, देखना कितना अच्छा वीडियो में सारी बातें रिकॉर्ड हो रही है बेटा। इधर देखो, कहाँ तक बताया मैंने? कहाँ तक बताया? अरे मेरे वीडियोस को तो फेमस होने दो। कहाँ तक बताया मैंने? ये तुम्ही बरोबर আমি ভিউজ ক্যানেল করে দিছো। হ্যাঁ, কালার से দুটো পার্টি করে দিছো। हाँ बोलो, क्या बोला? बोल, कहाँ लास्ट में कहाँ था? बोलो थोड़ा सा, वीडियो वगैरह पॉज हो गया था। कहाँ था मैं? कार्बोहाइड्रेट দুটো করে দিছো। हाँ, कार्बोहाइड्रेट का इंपॉर्टेंस पढ़ा दिया। हाँ, तो
ट्रांसपोर्ट होकर, मैं बता रहा था, ट्रांसपोर्ट होकर ग्लूकोज हर एक मसल सेल्स में जाता है, जहां जहां एनर्जी की जरूरत होती है वहां पे जाते हैं और ग्लूकोज ब्रेक होके एटीपी पैदा होता है। ये होता है सेलुलर रेस्पिरेशन। ठीक है, यही चीज एक बैक्टीरिया अगर करेगा, सेम चीज ही कर लेगा। बैक्टीरिया बोल लो, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोल लो, या लोअर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे फंजाई वगैरह या बोल लो, वो लोग भी वही कर लेता है। क्या कर लेता है? ग्लूकोज को अपने सेल के अंदर घुसा लेता है, या ग्लूकोज मिल सकता है जिससे, जैसे लैक्टोज, ऐसे वाले मॉलिक्यूल्स को अपने सेल के अंदर घुसा लेता है। और क्या करता है? दिस मेथड इज नोन एज डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन से घुसा लेता है और क्या करता है? उन मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन कर लेता है और ब्रेक डाउन करके एटीपी पैदा कर लेता है। मतलब इनके न्यूट्रिशन में कुछ नहीं है, डायरेक्ट अंदर ले लेना। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। लेकिन तुम्हारे न्यूट्रिशन में तुम अपने आप को कंपेयर करो, तुम भात मांसो ऐसे खा के ले लिया, इसोफेगस से गया, स्टोमक में प्रोटीन ब्रेकडाउन होता है। अच्छा, प्रोटीन ब्रेकडाउन होता है सर, प्रोटीन ब्रेकडाउन होकर क्या बनता है? हमेशा याद रखना बेटा, प्रोटीन है एमाइनो एसिड से बना हुआ। बहुत सारे एमाइनो एसिड प्रोटीन को बनाते हैं, याद रहेगा। बहुत सारे क्या प्रोटीन को बनाते हैं? अमाइनो एसिड। अच्छा, लिपिड्स को कौन बनाता है सर? फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। कौन बनाता है? फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। कौन बनाता है लिपिड्स को? फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। डीएनए और आरएनए को कौन बनाता है सर? न्यूक्लियोटाइड्स। लेकिन हम लोग ज्यादा न्यूट्रिशन में इसके बारे में बात नहीं करते, लेकिन ये भी हमारे पेट के अंदर जाता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्यों बात नहीं करते पता है? क्योंकि हमारा सेल न्यूक्लियोटाइड्स खुद ब खुद बना लेता है। उसको क्या चाहिए होता है? उसको कार्बन चाहिए होता है, नाइट्रोजन चाहिए होता है, ऑक्सीजन चाहिए होता है, खुद ब खुद बना लेता है। हाइड्रोजन चाहिए होता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? एम आई बीइंग एबल टू मेक माई सेल्फ क्लियर? अच्छा सर, सब समझ गए कि मतलब हम लोग प्रोटीन खाने से हमारे शरीर में प्रोटीन ब्रेकडाउन होकर अमाइनो एसिड बनता है, लिपिड्स ब्रेकडाउन होकर फैटी एसिड ग्लिसरॉल बनता है, डीएनए में ब्रेकडाउन होकर न्यूक्लियोटाइड्स बनता है, और ये सारी चीजें हमारे ब्लड में अब्सॉर्ब हो जाती हैं, राइट और रॉन्ग। और हम लोग इसको यूटिलाइज करते हैं अलग अलग वेज में। कार्बोहाइड्रेट को यूटिलाइज करते हैं एनर्जी लेने के लिए, लिपिड्स को यूटिलाइज करते हैं एनर्जी लेने के लिए। लिपिड्स फैट बनाता है और हीट इंसुलेशन के लिए भी काम आता है, ठीक है। लेकिन लिपिड्स हमारे सेल मेम्ब्रेन को भी बनाता है। प्रोटीन्स जो है, प्रोटीन्स हमारे बॉडी के स्ट्रक्चर को बनाते हैं, सेल के स्ट्रक्चर को बनाते हैं। प्रोटीन एक्ट्स एज एंजाइम्स और बायोकैटालिस्ट। आई विल टेल यू द मीनिंग ऑफ बायोकैटालिस्ट। रिएक्शन को पॉसिबल करवाता है, कैटालाइज करवाता है। उसके बारे में भी क्वेश्चन है, उसके बारे में भी बात करेंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? उसके बारे में भी बात करेंगे, क्वेश्चन है, ठीक है। लेकिन करवाता है। तो ये जो सारे हैं, अब तू ग्रो कर रहा है, सिर्फ एनर्जी एटीपी बनाने से नहीं चलेगा। जब तू ग्रो कर रहा है तब ग्रोथ की वजह से तुम्हारे सेल डिवाइड हो रहे हैं, यानी नए सेल्स बन रहे हैं, यानी तुम्हें रॉ मटेरियल की जरूरत है। तुम्हें रॉ सेल मटेरियल की जरूरत है जिससे तुम्हारा सेल मेम्ब्रेन बने, तुम्हारा राइबोसोम बने, तुम्हारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बने, तुम्हारा गोल्गी अपैरेटस बने, तुम्हारा डीएनए आरएनए बने। सबसे इंपॉर्टेंट तो डीएनए आरएनए बने, ये सुन लो। तुम्हारा न्यूक्लियस बने, नए से तुम्हारा सेल बने, तुम्हारा सेल मल्टीप्लाई हो, तभी तो इतना छोटा सा पैदा हुआ था, इतना बड़ा हो गया। नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज किया है, तो सेल इंक्रीज किया है, यानी सेल को जो बनाता है उसका रॉ मटेरियल भी तेरे को चाहिए। तो यू डू न्यूट्रिशन फॉर ग्रोथ ऑल्सो। ये तो ऐसी बात हो गई सर, हम न्यूट्रिशन करके इसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं डाइजेस्ट करके, फिर उसी को फिर से प्रोटीन बनाते हैं, फिर से लिपिड बनाते हैं, फिर से डीएनए आरएनए बनाते हैं और अपना सेल्स बना देते हैं, खुद का सेल्स बना देते हैं, राइट और जैसे क्या नाम है तेरा? हाँ, विदिशा ने, ऐसे बोली नाम हो मेरे को, ठीक है। विदिशा ने क्या किया? विदिशा ने अपना घर बनाया, तू जाके वो घर तोड़ा, ईटा पत्थर चूना वूना जो लेके अपना दूसरा डिजाइन का घर बना दिया। कुछ ऐसा ही हो रहा है। तू मांसो खाया, चिकन खाया, साग खाया, भात खाया, यानी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, लिपिड्स, फैट्स, ये सब खाया, और उसको डाइजेस्ट करके ब्रेक डाउन करके सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करके फिर अपना खुद का बना लिया सेल।
Are you getting my point? Yes, sir. And all this is programmed by whom, you know? All this is programmed by your sequence of DNA and RNA. क्योंकि DNA और RNA में जीन्स है, और जीन्स बनाता है प्रोटीन्स, मतलब कैसा प्रोटीन बनना चाहिए, प्रोटीन का स्ट्रक्चर कैसा बनना चाहिए, वो जीन्स गाइड करता है। प्रोटीन का जो रॉ मटेरियल अमाइनो एसिड वो तो बाहर से मिल रहा है, या तुम्हारा सेल बना रहा है नाइट्रोजन कार्बन कार्बन से। इसीलिए मैं बोला कार्बन बेस्ड लाइफ, क्योंकि तुम जो खा रहे हो उस चीज को तुम ब्रेक कर रहे हो, ब्रेक करके सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हो, उसको फिर से बना रहे हो। तो मेनली तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, उसके अंदर का जो कार्बन है वो जो फिर से बना रहा है उस स्ट्रक्चर को। ये सब नो ग्लूकोज का ही देख लो ना, तुम ग्लूकोज खा के स्टार्च तो नहीं बना रहे हो, प्लांट स्टार्च बना रहा है, प्लांट का स्टार्च खा रहे हो, उसको ग्लाइकोजन बना के रख रहे हो। दूसरे के घर के ईट को यानी ग्लूकोज को अपने घर बनाने में दूसरे स्ट्रक्चर में यूज कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? समझा पाया मेरा पॉइंट? समझा पाया यहाँ पे बात? Yes, sir. Yes, sir. अरे श्योर, तो यही कर रहे हो। इसीलिए मैंने बोला कार्बन बेस्ड लाइफ, क्योंकि ये सारी चीजें कार्बन। अब एक बात सुनो, अब समझाता हूं मैं ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक का डिफरेंस। ये पूरा समझ में आ गया? अब समझाऊंगा ऑटोट्रॉफिक, और ये सारी चीजें सिंपली हो जाती हैं बैक्टीरिया में। तुम्हारे लिए स्पेशल सेल्स ऑर्गन्स काम कर रहे होंगे, लेकिन बैक्टीरिया में सिंपली हो जाते हैं। कैसे? हाथी से मिटा दिया। अच्छा, देखो बात यह है कि कार्बन, राइट? मैं एक काम करता हूं, एनवायरनमेंट में बहुत नाइट्रोजन है, कार्बन है। मैं क्या करता हूं, एनवायरनमेंट का जो CO2 है उसको नाक से खींच लेता हूं। खींच लिया, ऑक्सीजन के साथ CO2 भी अंदर गया ना, उस CO2 का जो C है, और पानी पी लेता हूं थोड़ा सा H2O मिला के C6H12O6 बना देता हूं, यानी ग्लूकोज बना देता हूं। Yes, sir. उसी से मेरे को एनर्जी मिल जाएगा, बड़ा मजा आएगा। ये होता है ऑटोट्रॉफिज्म। इफ यू डिपेंड ऑन CO2 फॉर योर कार्बन सोर्स, आया बात समझ में? इफ यू डिपेंड ऑन CO2 फॉर योर कार्बन सोर्स टू मेक ग्लूकोज, देन यू आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक। सर प्लांट कर सकता है ऐसा? हाँ, प्लांट कर सकता है, इसलिए प्लांट ऑटोट्रॉफिक। Yes, sir. कुछ बैक्टीरिया है जो जिसके पास क्लोरोफिल होने के कारण वो भी ऐसे कर सकते हैं, लेकिन कुछ बैक्टीरिया जिनके पास क्लोरोफिल नहीं है, वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी को यूज करता है एक केमिकल से दूसरे केमिकल तक, ठीक है, और CO2 को बदल के C6H12O6, इसको कहते हैं फिक्सिंग ऑफ CO2। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इसको कहते हैं फिक्सिंग ऑफ CO2, और फिक्सिंग ऑफ CO2 करके इसको कहते हैं केमोसिंथेसिस। और प्लांट जो करता है वो CO2 को इसमें बदलता है, जाइलम और फ्लोएम से पानी उठा लेता, सॉरी जाइलम से पानी उठा लेता है, फ्लोएम तो छोड़ो फूड को ट्रांसफर करता है, जाइलम से पानी उठा लेता है, स्टोमाटा से CO2 उठा लेता है, दोनों को मिला के C6H12O6 बना देता है। यूज करता है किसकी एनर्जी को? लाइट की एनर्जी को। उस चीज को कहते हैं फोटोसिंथेसिस। सो फोटोसिंथेसिस इज इन द ऑटोट्रॉफिक मोड। Chemosynthesis is also an autotrophic mode, but in chemosynthesis what they are doing, in chemosynthesis they are not using light's energy, they are using chemical energy। मतलब एक केमिकल से दूसरे केमिकल में इलेक्ट्रॉन जब ट्रांसफर होता है उस एनर्जी को यूज कर लेता है। ध्यान से सुनो मेरी बात को, बाद में बहुत काम आएंगी। इज दिस क्लियर टू यू? एम आई बीइंग एबल टू मेक यू अंडरस्टैंड? केमोसिंथेसिस और फोटोसिंथेसिस का ये अंतर है। बैक्टीरिया कर सकते हैं फोटोसिंथेसिस। इज दिस क्लियर? कुछ बैक्टीरिया, सारे बैक्टीरिया नहीं। और हम जो बने हुए फूड को खाते हैं, बने हुए ग्लूकोज स्टार्च को खाते हैं, हम हुए हेटरोट्रॉफिक। वी डिपेंड ऑन ऑर्गेनिक मैटर फॉर आवर कार्बन। Such type of organisms are known as heterotrophic organisms. Organisms which can utilize CO2 for their carbon source. अब तुम बोलोगे कि सर प्रोटीन, लिपिड्स ये सब बनाने के लिए भी कार्बन डाइऑक्साइड से ले लेता है। नहीं, जो ग्लूकोज बना है अब उसको उसके बाद इस कार्बन को यूज करेगा प्रोटीन लिपिड्स बनाने के लिए। सर नाइट्रोजन मिट्टी से उठा लेगा,
ठीक है सर, हमको नाइट्रोजन, तुमको नाइट्रोजन फूड से मिलेगा। कार्बन सोर्स इंपॉर्टेंट है क्योंकि कार्बन सबका बैकबोन बनाएगा, प्रोटीन हो, कार्बोहाइड्रेट हो, लिपिड्स हो। लेकिन सिर्फ ऐसे पढ़ने से ही हो गया कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलकर जो ग्लूकोज बना रहा है, देखा ग्लूकोज कितना इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है, इसी से हम लोगों को एनर्जी मिलता है और यही प्रिकर्सर है बाकी चीजों को बनाने के लिए भी। इसी से कार्बन ले लेकर बनाया जाता है। इज दिस क्लियर टू यू? और इसी को ब्रेक करके भी एनर्जी भी बनाया जाता है। इज दिस क्लियर? इज दिस अंडरस्टूड? ऑटोट्रोपिज्म क्या हुआ? अगर ये कार्बन तुमको CO2 से मिल रहा है तो तुमको CO2 फिक्स करना है, तुमको बाहर से एनर्जी की जरूरत होगी, उसको वो लाइट भी हो सकता है, अगर लाइट तो फोटोसिंथेसिस, और अगर केमिकल है तो केमोसिंथेसिस। आई बात समझ में? तो अब अगर कोई पूछ दे व्हाट डू यू मीन बाय न्यूट्रिशन, उसके मुंह पे आंसर दे सकेगा? कोई अगर पूछ दे राइट डाउन द 3 इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूट्रिशन फॉर मेकिंग एनर्जी, फॉर ग्रोथ, फॉर रिपेयर, नेम द न्यूट्रिएंट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, टेक कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। अच्छा, विटामिन्स मिनरल्स की जरूरत क्यों होती है वो मैं बता देता हूं थोड़ा सा। विटामिन्स ग्रोथ के लिए हेल्प करती है, मिनरल्स मतलब आयंस, यानी मैग्नीशियम आयन, आयरन, ये सारे एंजाइम्स को काम कराने के लिए हेल्प करती है। सर एंजाइम्स क्या है? एंजाइम्स वो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स है जो एक केमिकल रिएक्शन को पॉसिबल कराता है सेल के अंदर। एंजाइम्स वो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स है जो एक सेल के अंदर केमिकल रिएक्शन को पॉसिबल करवाता है। इज दिस क्लियर? एम आई बीइंग एबल टू मेक माई सेल्फ क्लियर? ठीक है, इन मिनरल्स के बिना एंजाइम्स काम नहीं करता कभी कभी, ठीक है। अच्छा, प्लांट में जो क्लोरोफिल है वो मैग्नीशियम के बिना बनेगा नहीं, तो मिनरल्स की जरूरत तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को होगा ही। व्हाट डू यू मीन बाय ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन? अब तो ऐसा आंसर देंगे, है ना? ऐसा आंसर देगा। ऑटोट्रोफिक और न्यूट्रिशन मींस दोज हु कैन मेक देयर ओन फूड। छोटा बच्चा लोग ऐसा आंसर देगा, तुम ऐसे आंसर मत दो। Autotrophic or nutrition means if we can use, if the autotrophic nutrition, in autotrophic nutrition, the autotrophic organisms uses carbon dioxide as their carbon source to make C6H12O6. And what is heterotrophic organism? Heterotrophic organism is which rely on other organisms or already fixed form of carbon, that is organic form of carbon. क्योंकि मैं अगर दूसरे ऑर्गेनिज्म को खा रहा हूं तो प्रोटीन, लिपिड्स, फैट्स, इसी से कार्बन मिल रहा है मेरे को, तो वो तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हुए ना। लिविंग ऑर्गेनिज्म से एक्सट्रैक्टेड कंपाउंड का मतलब है ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो इट डिपेंड्स ऑन ऑर्गेनिक सोर्सेस ऑन कार्बन, तो ये होता है हेटरोट्रॉपिक। बैक्टीरिया भी ऑटोट्रॉपिक होता है, बैक्टीरिया हेटरोट्रॉपिक भी होता है, और हायर ऑर्गेनिज्म में तो पता ही है प्लांट्स ऑटोट्रॉपिक होता है और हम लोग हेटरोट्रॉपिक होते हैं। इज दिस क्लियर टू यू? इज दिस अंडरस्टूड? What are the types of autotrophic nutrition? Chemosynthesis and photosynthesis. What is the difference between photosynthesis and chemosynthesis? बहुत सारे difference है। In chemosynthesis we don't require light, we require chemical energy. In photosynthesis we require light energy. Right or wrong? Chemosynthesis is done by small bacteria. Photosynthesis is done by higher plants, lower plants, all kind of plants. Also photosynthesis is also done by some bacteria which carry chlorophyll. In chemosynthesis, we do not require chloroplast. In photosynthesis, we require chloroplast or chlorophyll. Write down the difference between photosynthesis. What do you mean by heterotrophic nutrition? What are the 3 types of heterotrophic nutrition? 3 types of heterotrophic nutrition. Oh, holozoic, saprophytic, parasitic. Holozoic मतलब जो मुंह बना के खा लेता है, सैप्रोफाइटिक मतलब जो डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर ग्रो करता है, और पैरासाइटिक मतलब पैरासाइट्स जो दूसरे ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर में से न्यूट्रिशन होस्ट के ऊपर से ये लेता है। पैरासाइटिक प्लांट्स होता है, पता है? हाँ सर। क्या नाम है? कैस्कुटा, फ्लाई, वेनस फ्लाई ट्रैप, ठीक है। और पिक्चर प्लांट, और पिक्चर प्लांट में तो मैं छोटा सा ऐसा हाथ फंसा गया था क्योंकि उसका जो पिक्चर होता है ना,
पीछे प्लांट देखा, मेरे को बड़ा मजा आया। उसका पूरा हाथ घुसा दिया अंदर तो ठंडा, पूरा मजा आ रहा है। हाथ जब निकाला मैं पूरा सुकड़ गया था, वे हाथ न्यूट्रिशन खींच रहा था। वहां पे इंसेक्ट्स गिरते हैं, न्यूट्रिशन से न्यूट्रिशन खींच लेते हैं। और विनस फ्लाई ट्रैप तो यूट्यूब में कभी वीडियो खोल के देखना, बड़ा मजा आता है देखने में। ऐसे खुला हुआ रहता है, इंसेक्ट आता है, टक कर पकड़ लेता है। एनीवे, अच्छा, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एंजाइम्स इन न्यूट्रिशन? व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एंजाइम्स इन न्यूट्रिशन और व्हाट डू यू मीन बाय बायोकैटलिस्ट? ये क्वेश्चन थोड़ा सा बताया तो मैंने अभी तुम लोगों को, थोड़ा सा और डिटेल्स में एक्सप्लेन कर देता हूं। बात मत करो, तो छेड़ क्यों डाले? देख, एक रिएक्शन हो रहा है जो ए से बी होगा, या फिर मैं तुमको बता सकता हूं कि ग्लूकोज से जब एनर्जी बनता है ना, ये जब मैं न्यूट्रिशन पढ़ाऊंगा, सॉरी रेस्पिरेशन पढ़ाऊंगा, ठीक है, तब तुमको बताऊंगा यहां पे बहुत केमिकल, मेनी केमिकल रिएक्शंस होते हैं। Let us take example of one chemical reaction. Suppose compound A wants to get converted into compound B. वीडियो चल रहा है बेटा। Compound A gets converted into compound B. Now, to convert compound A into compound B requires lots of time and energy. अब सोच, ऐसा एक एनालॉजी, मुझे यहां से कोलकाता जाना है, मुझे यहां से एनजीपी जाना है, एनजीपी से टिकट बुक कराना है, ट्रेन में उठना है, फिर ट्रेन जाएगा, ठीक है, और लेके मेरे को 12 घंटा बाद कोलकाता पहुंचाएगा। कोलकाता में उतरना है, वहां पे सियालदा स्टेशन में कंफ्यूज होके, घूम घूम के, डर डर के, फिर बाहर आके टैक्सी पकड़ना है, फिर जहां काम है वहां जाना है, फिर काम करना है। मेरे पास अगर एक प्राइवेट जेट होता तो यहां से बागडोगरा स्टेशन से उठता, 1 घंटे में पहुंचता, काम खत्म करता, आ जाता। ये जो जेट वाला काम है, ये एंजाइम का है। ए से बी होने में बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन एंजाइम्स क्या करेगा? एंजाइम इज अ प्रोटीन मॉलिक्यूल which will come, which has an active site, we call it a active site, जिसमें बहुत सारे बॉन्ड्स खुले हुए रहते हैं। ए जाके नॉर्मली अकेले अकेले बी में कन्वर्ट होने से यहां पे जाके बाइंड हो जाता है और इसको बदल के एंजाइम बी बना देता है। ये है एंजाइम, दिस इज बायोकैटालिस्ट। बायोकैटालिस्ट और एंजाइम खुद टेक पार्ट, बोलते हैं ना एंजाइम्स डजंट टेक पार्ट बाय इटसेल्फ बट इंक्रीजेस द रेट ऑफ द रिएक्शन। गलत है। एक्चुअली एट द एंड उसको उसी फॉर्म में मिला जाता है, उसी फॉर्म में उसको वापस मिल जाता है ना, तो इसीलिए बोलते हैं डजंट टेक पार्ट। जो एंजाइम काम कर रहा है वो एंजाइम काम करेगा, लेकिन ऐसे काम करता है। इज दिस क्लियर टू यू? इज दिस अंडरस्टूड? So what is the importance of biocatalyst? It increases the rate of the reaction, makes the reaction or makes the cellular reaction possible inside the cell. Is this clear to you? What are enzymes? Enzymes are actually functional protein molecules. What are the three types of holozoic organisms? So herbivores, carnivores and omnivores. ये समझना पड़ेगा मेरे को। Herbivores मतलब हेट्रोट्रॉफिक, तो होलोजोइक का पार्ट है। हेट्रोट्रॉफिक का 3 पार्ट है, होलोजोइक, पैरासाइटिक, सैप्रोफाइटिक, और होलोजोइक का फिर 3 पार्ट है, हार्बिवोरस, कार्निवोरस, ऑम्निवोरस। सैप्रोफाइटिक डेड एंड डिकेइंग के ऊपर जो करता है, ठीक है। पहले 10 क्वेश्चन समझा दिए, बाकी क्वेश्चंस को लेके और एक बनाएंगे। इतना तक समझ में आ गया? मजा आया बायोलॉजी पढ़ के? Yes, sir. ऐसे पढ़ाते हैं तुम्हारे स्कूल में? पढ़ाते होंगे मेरे सब। ची ची ची, मेरे को ऐसा बोलना नहीं चाहिए।